Hello guys, welcome to Science Zone lecture number 4, chapter number 2, behavior of gases. So my dear students, in the last lecture I taught all of you till Avogadro's law, molar volume, the concept of mole I taught you. Today is the important lecture about the most important topic of this chapter, which is ideal gas equation. The important chapter is behavior of gases, but the important topic in this chapter is ideal gas equation. So before starting our video, we will first recap our what we studied in the last lecture. हम लोग ने क्या पढ़ा है? Before wasting our time, we are going to start our lecture. We studied Avogadro's law. We studied Avogadro law. We studied Avogadro law. Second, Avogadro. Number. Third is mole. Fourth is molar volume. We studied these 4 topics we studied in last lecture. Today we are going to start our very important topic is ideal gas equation. So before wasting our time, we are going to start our lecture. So today's lecture number 5, the topic is ideal gas equation. What is ideal gas equation? First we will write the equation. ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए जितना नीड है उतना ही लिखेंगे. ज़्यादा एक्सप्लेन सिर्फ करना है, लिखना कम है. जो भी लिखना है, पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. हम लोग स्टार्ट करें आइडियल गैस इक्वेशन. ओके गाइस, we know combined form of Boyle's and Charles law what we know from this, we know the topic. We know P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 equals to Q. We know till this. After that, so guys, जैसा कि हम लोग जानते हैं, this is the combined form of Boyle's and Charles law. As we know, at a particular temperature and pressure, the quantity of a mass is directly proportional to its volume. ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, particular temperature and pressure में the quantity of a mass is directly proportional to its volume. Volume पे directly proportional होता है, आपके बुक पे मिलेगा. तो वहीं पे हम लोग के एक और भैया आया, एवोगाड्रो भैया आया. एवोगाड्रो भैया ने क्या बोला, अंडर सिमिलर कंडीशन
उसने क्या बोला, सिमिलर कंडीशन पे, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर जो सेम होता है तो उसका जो 1 मोल होता है ऑफ गैसेस इज ऑल्सो सेम। अवोगाड्रो भैया ने बोला, अवोगाड्रो भैया ने बोला, क्या बोला अवोगाड्रो भैया ने, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। अवोगाड्रो लॉ, फिर हम लोग ये रिकैप कर लेते हैं। दैट इज अंडर आइडेंटिकल, मतलब जाना हुआ, आइडेंटिकल कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, the volume occupied, the volume occupied by 1 mole, the volume occupied by 1 mole of all gases is same. So for 1 mole the value of K is same. Irrespective condition, the condition temperature and pressure under which the volume is measured. So भैया एवोगाड्रो भैया के हिसाब से अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस इज सेम। हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1 मोल क्या होता है। जो बच्चा या जो फ्रेंड्स अभी ये वीडियो देख रहा है तो फर्स्ट एवोगाड्रोस लॉ की वीडियो को देख लीजिए, एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, उसके बाद आपको 1 मोल वगैरह समझ में आएगा। इज सेम। सो फॉर 1 मोल द वॉल्यूम ऑफ के इज ऑल्सो सेम irrespective द कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर विच द वॉल्यूम इज मेजर्ड। यहाँ पे वॉल्यूम मेजर होता है। तो भैया अब आता है इंटरेस्टिंग चीज़, ये तो एवोगाड्रो भैया ने बोला, अब इसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। इसे रब कर देते हैं, सब आपके बुक पे है, इसे रब कर देते हैं, इसे रब कर देते हैं, इसे रब कर देते हैं। सो गाइस द वैल्यू of K corresponding the value of K corresponding to 1 मोल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि 1 मोल का सेम रहता है, जैसे कि मैंने आपको बोला 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस इज सेम, तो वैसे ही
जो वैल्यू जो के होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 मोल, उसका वैल्यू के का वैल्यू 1 मोल के बराबर होगा, इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, by capital R. So guys, this and this capital R is known as universal gas constant और मोलर। हम लोग मोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोल के ऊपर के बात कर रहे हैं, ठीक है। और मोलर गैस कांस्टेंट। सो भैया, सो फॉर 1 मोल, so for 1 mole of gas, हम लोग क्या लिख सकते हैं, we can write PV by T equals to R. We can write PV by T equals to R or PV equals to RT. This is our required formula. आप इसे लोग समझते हैं। देखिए, the value of K is corresponding to 1 mole. इसका वैल्यू is denoted by R, and this R is known as universal gas constant or molar gas constant. Molar is for मोल, मोलर इज फॉर मोल। यहाँ पे मोल की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे मोलर गैस कांस्टेंट की बात है। सो यहाँ से हम लोग को ये मिलता है, सो फॉर 1 मोल, 1 मोल की जगह देखिए यहाँ पे हम लोग बोला कॉरेस्पॉन्डिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 मोल। सो फॉर 1 मोल ऑफ गैस यू कैन राइट PV इक्वल्स टू R। जहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, PV बाई T इक्वल्स टू K। यही था ना, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू K था ना। ये समझिए, ये ऐसा था। तो हम लोग ये PV बाई T इक्वल्स टू K था ना, ये एक कंबाइंड फॉर्म ऑफ लॉ। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे K के जगह पे हम लोग ने R लिखा है फॉर 1 मोल। तो यहाँ से हम लोग ये क्रॉस इंटू कर दिए, मतलब ये T यहाँ चल गया, इंटू पे हो गया, तो PV इक्वल्स टू RT। दिस इज फॉर 1 मोल। फॉर 1 मोल आइडियल गैस का इक्वेशन ये है। सो गाइस, ये 1 मोल के ऊपर हो गया बात। अगर 1 मोल से ज़्यादा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना भी हो, नो टू वरी। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, जितना भी हो। अब हम लोग देखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट वी विल राइट देयर, जो हम लोग लिख देते हैं। 1 मोल का इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था PV इक्वल्स टू RT, ये था। सो फॉर देखिए कि अब ये 1 मोल हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, समझिए इनफाइनाइट मोल्स, समझिए। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला को ये समझिए,
1 2 3 4 ये सबको हम लोग n से डिनोट कर दिया। n की जगह पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, n की जगह पे। तो n इज अ जनरल फॉर्मूला। so for n moles PV equals to nRT. This is our required formula. PV equals to nRT. This is our required formula, and this formula is very important. PV equals to nRT. So guys, हाँ गाइस, यहाँ तक हम लोग ये समझ चुके हैं। ये तो हम लोग का ये वाला आइडियल गैस इक्वेशन था। तो गाइस अब हम लोग थोड़ा समझते हैं मोल्स के ऊपर जब बात हुआ है, मोल्स जब ये n के ऊपर, जब ये n के ऊपर जब ये बात हुआ है, इस n के ऊपर, तो समझने वाला बात है नंबर ऑफ मोल्स जब लोग निकलते हैं n, समझिए। अब बात समझने वाली चीज है, इसे मैं इरेज करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। अब बात समझिए। if small m and capital, तो ये स्मॉल m जो है ये है मास इन ग्राम, ये कैपिटल M जो है ये है मोलर मास। ये है मोलर मास। तो वी नो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। सो गाइस, as per the equation PV equals to nRT, this is the equation, required equation of ideal gas equation. This is ideal gas equation. So guys, we can put n equals to small m, n equals to small m by m. We can put this. We can put this. So what will be the our required equation? PV equals to, instead of n we can put small m by capital M, where small m is mass in gram and capital M is molar mass, and RT. From this RT we can cross multiply, we can cross multiplication, by applying cross multiplication we can put this V in here and this in here. So guys, from here we can write, see, from here Pm equals to small m by V means volume equals to RT. So guys, this is our next formula, this is our next equation. एक और मजेदार वाली बात है गाइस, हम लोग को पता है ना, शायद we know what we know density. We know density. We know density equals to mass by volume. We know density equals to mass by volume. So guys, यहाँ देखो,
यहाँ पे देखो, सी हेयर, सी हेयर गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, PM equals to, this is density's formula, density equals to mass by volume, so this is mass by volume, mass by volume is divided by density, so it is density, density equals to RT, therefore D मतलब density equals to PM, PM prime minister ना, PM by RT, this is the another formula of density of a gas. So guys देखो, यहाँ से हम लोगों को कितना कुछ मिलने को मिल रहा है. First is this one, second equation is this one, third equation means guys, first equation तो था, wait, this is our second equation, the third equation. First equation was PV equals to RT. This was our first equation. For 1 mole, 1 मोल के लिए, n मोल के लिए, उसके बाद इसको हम लोग ने ये n मोल्स मतलब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ने ये फॉर्मूला पे तोड़ा है m/m में, मास इन ग्राम मॉलिक्यूलर मोलर मास पे, तो ये यहाँ पे हम लोग n की जगह ये पुट किए, वहाँ से हम लोग को ये थर्ड इक्वेशन मिला. फिर वहाँ से हम लोग को यहाँ पे डेंसिटी मिली, डेंसिटी की फॉर्मूला होता है m/v, मास बाय वॉल्यूम. ये मास बाय वॉल्यूम हम लोग ने यहाँ पे mv के जगह पे हम लोग ने यहाँ पे पुट किया, यहाँ से हम लोग को डेंसिटी का यहाँ मिला, तो डेंसिटी का अलग फॉर्मूला हम लोग को मिला PM/RT. दिस इज आवर अनदर फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस. सो गाइज इतना कुछ हम लोग को मिला, तो हम लोग एक साइड पे ये लिख देते हैं, एक अलग से अच्छे से हम लोग ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं ये 3 फॉर्मूले. सो गाइज नंबर 1, PV equals to RT. Number 2, PV equals to nRT. Number 3, PV equals to small m by capital M RT. So from this we getting PV equals to D RT. No, we are getting what we are getting PM equals to D RT. From here we are getting D equals to PM by RT. So guys ये 3-4 चीज़ें हम लोग को मालूम हुई. यहाँ से हम लोग का बहुत क्वेश्चन आता है, सॉल्व करना पड़ेगा. ऐसा क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे प्रेशर दे देगा, नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, ये R का वैल्यू दे देगा, हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे R का वैल्यू, ये टेम्परेचर दे देगा, बोलेगा वॉल्यूम फाइंड करो. ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग करना पड़ेगा. तो ये 4 चीज़ें हम लोग को ये हम लोग ने निकाला. सो गाइस the next topic, the very next topic is unit. The very next topic is unit of R. Unit of R. What is the topic?
यूनिट ऑफ आर। हम लोगों को पता है, वी ऑल नो द फॉर्मूला, आइडियल गैस इक्वेशन। आई विल नॉट से द फॉर्मूले, आई विल से इक्वेशन। इक्वेशन होता है ये, दिस इज इक्वेशन और यू कैन से फॉर्मूला, जो आपके लिए इजी हो, पर इक्वेशन बोलते हैं इसमें। हम लोग को क्या पता है, वी नो पी वी इक्वल्स टू आर टी। हम लोग को यही ना पता था फॉर्मूला फॉर 1 मोल, याद करिए, फॉर 1 मोल, ये था जनरल फॉर्मूला फॉर 1 मोल गाइस, फॉर 1 मोल। सो गाइस, फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग आर इक्वल्स टू PV by T. We are getting PV by T, where P equals to pressure, V equals to volume, and T equals to temperature. We know this. So guys, pressure. So guys, we know this is pressure, and the formula of pressure is force by area. Volume का formula क्या होता है, लेंथ क्यूब, लेंथ का क्यूब, हम लोग को पता है ये सब। उसके बाद So guys wait, okay, लेंथ, एरिया क्या होता है, देखो घबराने का नहीं है, सी एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है ना, तो हम लोग इसको कर देंगे L स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, ओके 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 ओके। सर ने बोल दिया हमने कर दिया, ऐसा नहीं है। सर ने बोल दिया हमने कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन, डिग्री केल्विन, देखिए, समझिए, सोचिए। सो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक लेंथ का था, यहाँ से स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स इनटू देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक, देखो वेट, ऐसा समझो, लेट्स सी दिस, तुम लोगों की इजी के लिए ये मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा समझो, यहाँ पे जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्या होता है, हाँ क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ क्यूब, किसी भी चीज का क्यूब को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यहाँ पे स्क्वायर था लेंथ का, तो इंटू लेंथ, एक लेंथ एक लेंथ एक लेंथ एक लेंथ, ये दो लेंथ कट गया, तो क्या बचा, ओनली लेंथ, ओनली लेंथ बाय डिग्री केल्विन। ये बचा, तो फोर्स इनटू लेंथ मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ, वी नो, हम लोग को ये पता है क्या पता है, वर्क का फॉर्मूला हम लोग को पता है, हम लोग को ये पता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई
लेंथ क्या है, एक डिस्टेंस ना है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वर्क। दिस इज द थिंग, यही से समझने वाली चीज है। फोर्स इनटू लेंथ, लेंथ क्या होता है, लेंथ भी तो एक डिस्टेंस है, लेंथ डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वर्क, एंड वर्क इज इक्विवेलेंट, वर्क इज इक्विवेलेंट, वर्क और एनर्जी, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, एनर्जी से इक्विवेलेंट होता है वर्क, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। अरे भाई एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, जो हम लोग को वर्क करने में हेल्प करे, और वर्क क्या होता है, जो हम लोग वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। सो गाइस यहाँ पे एक और आ गया, यहाँ पे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वर्क और एनर्जी बाय डिग्री केल्विन। ये हम लोग लिख सकते हैं। सो हम लोग इसे इरेज करते हैं यहाँ। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो तो इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर। तो वर्क का यूनिट हम लोगों को पता है, जूल होता है, जूल। तो जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। ये होता है यूनिट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ यूनिट। अब हम लोग इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, इम्पोर्टेंट बात, इसे लिख लीजिए, उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है, या बुक पे, या समझ लीजिए सिर्फ, इट्स इनफ, समझ लीजिएगा सब कुछ हो जाएगा। चलिए इसे इरेज करते हैं, इंटरेस्टिंग है, समझ जाएंगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, our next topic is dimension of R। तो हम लोग को वही वाला घिसा पिटा वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा, घिसा पिटा वाला इक्वेशन we have to write, what we have to write, this we have to write। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखना पड़ेगा, PV equals to nRT। तो ये झटपट करता हूँ, R इक्वल्स टू क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ तो PV बाई NT ये हुआ। तो P है प्रेशर, वी नो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, ओके। बाई N क्या है, मोल्स इनटू टाइम, टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। तो हम लोग ये टेम्परेचर हम लोग धरेंगे के। सो डायमेंशन जब भी करेंगे हम लोग ये थर्ड ब्रैकेट देते हैं, we always give a third bracket for dimension। जब हम लोग डायमेंशन करेंगे तो सब में हम लोग थर्ड ब्रैकेट देंगे, ओके। सो वी विल डू फोर्स का डायमेंशन होता है
इसे और तोड़िए, चलिए। फोर्स क्या होता है? एम ए होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर बाय मोल्स, मोल लिख दिया, यहाँ पे मोल लिख देते हैं, केल्विन में, ये टेम्परेचर का ये सब यूनिट है। तो यहाँ पे मास हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मास का जो यूनिट होता है कैपिटल एम होता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है वो होता है एल टी माइनस 2, इससे भी तोड़ लीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? देखिए, जैसे कि वी नो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। और आगे बढ़िए, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होता है, तो एल बाय टी, ये है टाइम। तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये एल टी माइनस 1 इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एल टी माइनस 1 यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या देंगे? एल टी माइनस 1 बाई ये टी, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इधर देखिए सी है, यहाँ पे एल टी माइनस 1 हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 1, ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? यहाँ देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या होगा? एल टी माइनस 1, और ये टी यहाँ, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये एल टी माइनस 2, मतलब एल टी मतलब यहाँ पे ये माइनस जाएगा, तो माइनस क्या होता है? -2 होता है, यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। दिस इज आवर एक्सेलरेशन का डायमेंशन, तो गाइज यहाँ से फ्रॉम हियर मास का होता है m, एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस 2 बाई एल स्क्वायर बाई मोल। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हम लोग को मिला? क्या मिला? ये L2 वहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक। चलिए देखते हैं कहीं कुछ हुआ है। हाँ, हुआ है, एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग कहाँ लिखे हैं? वॉल्यूम, वेयर इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज L क्यूब, यहाँ पे L क्यूब होगा। ये दो कट के एक, ये दो कट के एक हो गया, तो ये क्या हो गया? ये L स्क्वायर हो गया, m L स्क्वायर T माइनस 2 पर मोल, मतलब मोल इनवर्स पर केल्विन। दिस इज आवर डायमेंशन, इसे रब कर देते हैं, ये एक्सप्लेन के लिए बोला था मैं सिर्फ। दिस इज आवर डायमेंशन बहुत पढ़ना है 11 में। सो R का डायमेंशन यहाँ पे लिखता हूँ,
आर का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, वो होता है ml² T-2 per mole per Kelvin. This is the dimension of R. ये R का डायमेंशन, इसे नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 मार्क्स में आता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ R, ये आता है, लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। चलिए इरेज करते हैं, बस समझ जाइए कैसा मैंने डिराइव किया। अगर भूल भी जाइएगा तो ऐसा आप लोग डिराइव कर सकते हैं, आप लोग उसको डिराइव कर सकते हैं। अब आते हैं, अब द नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर तो नंबर 1 पे देखेंगे हम लोग इन लीटर। इन लीटर एटमॉस्फेरिक यूनिट, इन लीटर एटमॉस्फेयर unit. So we know R equals to PV/T. So we know. तो यहाँ पे we know 1 atmosphere pressure, ये प्रेशर होता है, प्रेशर ये प्रेशर होता है, तो 1 atmosphere pressure ये होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, देन एंड 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, मतलब 273 केल्विन, समझ जाइए। द volume of 1 mole of gas सो वॉल्यूम पता है, हम लोग पढ़े थे आवागाड्रोस लॉ में, 1 मोल का वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करता है वो 22.4 होता है, इतना होता है। तो अब हम लोग ये सब का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। आर पी का वैल्यू क्या था 1 एटमॉस्फेयर इंटू वी 22.4 लीटर बाय टी कितना होता है 273 केल्विन। सो इफ वी विल calculate this, we are getting 0.082 liter atmospheric per Kelvin per mole. We are getting this. ये किसमें है, ये है in liter atmosphere unit. This is our value. Guys, this is our value. So guys, अब हम लोग इसे उतार लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, CGS और SI यूनिट पे लिखेंगे। इसे इरेज करते हैं। So guys, in CGS unit, value of R to 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, ये CGS में क्या होता है, ये होता है 76 into 3
13.6 into 981 dynes सेंटीमीटर इनवर्स. सो ये जब हम लोग काउंट करेंगे तो वी विल गेट 1013961.5 dynes सेंटीमीटर इनवर्स. यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर होगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इनवर्स स्क्वायर होता है. इसे हम लोग और चेंज कर लेते हैं, इसमें अब में कर लेते हैं. तो क्या होगा, वी विल गेट 101.39615 erg by cc. वॉल्यूम वही होगा 22.4 लीटर. टेम्परेचर भी वही होगा 273 केल्विन. वैल्यू पुट करिए 1013961.5 मतलब 0.5. और ये CGS में है इसीलिए हम लोग अर्ग बोल रहे हैं. और CC इनवर्स इंटू 22400 CC by 273 equals to 8.314 into 10 to the power 7 और केल्विन पर केल्विन. समझिए आप अब यहाँ सोचते हो नहीं ये लीटर पे था, हमें सीसी पे कर दिया. सीसी तो ऐसा देखिए ना 22 ये डेसिमल हटाने के लिए बाई 10 into 1000 करेंगे. कटा 2 0 आ गए, ये सीसी पे हो गया. ये कैलकुलेट करने के बाद ये आया. दिस इज आवर CGS यूनिट ऑफ आवर. ये है CGS यूनिट ऑफ आवर 8.314 into 10 to the power 7 और पर केल्विन पर मोल. सो गाइस अब हम लोग देखेंगे, ये इरेज करते हैं. समझ लीजिए, सिर्फ समझ लीजिए, बुक पे सबका वैल्यू दिया. सिर्फ लास्ट का जो है ना CGS इन CGS सिर्फ ये याद करना है. 8.314 into 10 to the power 7 और पर केल्विन पर मोल. बस ये याद करना. अब आइए NSI पे. सो गाइस एक दिमाग पे बैठा के रखना 1 जूल, जो 1 जूल होता है वो 10 to the power 7 अर्ग. ये दिमाग में बैठा के रखना. तो यहाँ पे 1 जूल के नंबर 7 अंक होगा. ये SI पे, तो देयरफॉर R equals to 8.314 जूल
per Kelvin. This this is our required value. सिर्फ इससे याद करना है, सिर्फ इसे याद करना है. So guys, आज हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया. अगली क्लास में इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे. उसके बाद बिहेवियर एट द मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब मॉलिक्यूलर पार्टिकल, मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ एन आइडियल गैस, उसका बिहेवियर कैसा होता है आइडियल गैस, उसके बारे में. आई थिंक अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 6 विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द क्लास, मतलब ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफ द चैप्टर. बट उसके बाद के लेक्चर एक मैं दूंगा, वहाँ पे सम क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम. वो क्वेश्चन को समझाऊंगा अगले लेक्चर पे, नहीं उसके अगले के अगले लेक्चर पे. सो गाइस, अभी तक अगर समझ में आ गया तो इट्स वेरी गुड. अगर नहीं आया तो कमेंट में मुझे पिन करना, बोलना कि ये पोर्शन, ये टॉपिक समझ में नहीं आया. आई विल एक्सप्लेन इट इन अनदर वीडियो और इन अनदर लेक्चर. अगर आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें. टिल नाउ गाइस, गुड बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस. अच्छे से रहो अभी के दौर पे. बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.